Hi, this is Vaibhav Guthari, and the wait is over. In this video, we have with us. It was a live session, so it is recorded video of this. We have with us Siddharth Jain, who has 34,000 plus followers on LinkedIn, who topped his district in his intermediate examinations. He had gold medal in tax and law in his inter exams as well as gold medal in English and IT Olympiad. He has also All India rank 6 in Commerce Talent Search examination, and he is graduated from Delhi University. So let us move to the live video. Hello everyone, we will be starting in next 5 minutes. We are waiting for others to join. We can start, and if you want to ask any question from Siddharth, please prepare it now and then you can enter it into the chat box so that we can see and Siddharth can answer it. Yes, we are reading the chats. Hi Vidang. Hi Shamyukta. Hi everyone. Friends, I am Vaibhav Guthari and we have with us today Siddharth Jain. Let me give a brief intro of Siddharth to all of you. And please, friends, if you have any questions from Siddharth which you want to ask from him, you can write in the chat box. Mm. Hi, so we have today with us a person who has 34,000 plus followers on LinkedIn. He has completed his articleship from Deloitte. He was a district topper in his intermediate exams. He completed his graduation from Delhi University. He secured All India rank 6 in CTSE exams. He has a gold medal in English and IT Olympiad. He was 12th board's topper in his CBSE exams. He also got gold medal in tax as well as law in his intermediate exams. So please welcome with a huge round of applause Siddharth Jain. Yes, Thank Siddharth. you, thank you, Weber, for the amazing introduction. So, as you approached me for the LinkedIn experience of mine, so I would love to share my experience with everyone who has joined till now. So you can ask any question or anything. If anyone also want to ask anything, he or she can write in the chat box. I will reply to every question which I find appropriate. The first question I would like to ask from you, how did you manage both LinkedIn as well as means social media as well as your studies, as you got so many ranks, All India rank 6 in CTSC, you topped in English and IT Olympiads, as well as a gold medal in tax as well as law in your intermediate exams. How did you manage all these? So basically, I started my LinkedIn in 2017. Okay. So these all achievements are before 2017. So my half articleship was complete in 2017. So when 2017 में जब मैं घर आया तो I had to take a transfer. तो तब मेरे को लगा कि मतलब सीए में आपको नेटवर्किंग की काफी जरूरत है. As we always say, network is your net worth. So I started in 2017. So 2017 में इतना नहीं पता था, जैसे जैसे थोड़ा बहुत चला रहा था. तो कभी ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरे को ऐसे इन्फ्लुएंसर बनना है या ऐसे आप 30,000 कनेक्शन बनाने, ऐसा कुछ नहीं था. तो बेसिकली क्या है कि आई लव टू रीड एंड आई लव टू शेयर माय थॉट्स. तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बेसिकली. तो आप फेसबुक पे डाल नहीं सकते, ट्विटर एक अलग चीज हो गया, इंस्टाग्राम इसके लिए नहीं है. तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट लगा. तो मैं धीरे धीरे जो मेरे दिमाग में आता था, मतलब मैं डालता था. तो शुरू में बड़ा ऐसे अजीब लगता था कि वेदर पीपल विल लाइक और नॉट. तो शुरू शुरू में बड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला. जैसे अगर मैंने कुछ पोस्ट डाल दिया तो लोग भड़क जाते थे कि ये क्या डाल दिया, दिस इज नॉट मेंट फॉर लिंक्डइन, इट इज ए प्रोफेशनल नेटवर्क एंड दिस इज ओनली फॉर जॉब एंड अदर स्टफ. पर धीरे धीरे फिर मेरे को पता लगा, नहीं, यू कैन, मतलब ए कॉमेडियन, ए फोटोग्राफर और all the professionals are on LinkedIn. So it is not only for job purpose. So
मैनेज करने की बात तो ऐसे है जैसे कि मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ तो टाइम तो कंज्यूम होता है, पर मैं उस वक्त में चलाता हूँ जैसे अगर 3 घंटे पढ़ लिया, अब 1 घंटे का ब्रेक चाहिए तो चला लिया। तो मतलब ये रिफ्रेश ही करता है माइंड को, मतलब थोड़ा मेरे लिए तो सही रहा। तो मतलब शुरू में ऐसा होता था कि एक दो लाइक्स भी नहीं आते थे, जैसे हम अभी लिंक्डइन पे नए नए हैं, तो हमारे हम्म। जैसे ही कोई आईडी बनाता है एक दो पीपल भी लाइक नहीं करते हैं। तो तब हाँ। कैसा था कि मतलब फिर वहां से 34,000 फॉलोअर्स तक कैसे पहुंचे, और आपके जैसे कनेक्शंस आपको किस किस वे में काम आए, ये भी थोड़ा सा। हाँ, तो शुरू में क्या था, शुरू में कि आपको अगर अपनी रीच बढ़ानी होती है तो आपके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि नो वन नोज यू, मतलब हु आर यू, नो वन गिव्स अ डैम। सो मैं जो भी मतलब सीए फर्टिनिटी के होते थे, चाहे वो सीए हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे वो सेमी क्वालिफाइड हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब चाहे सीए में कितना ऊपर से ऊपर हो, नीचे से नीचे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं रिक्वेस्ट भेजता था। तो धीरे धीरे मतलब इसमें ऐसा है कि आप ऐसे अनलिमिटेड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो देयर इज ए बार कि अगर आप मान लो 100 रिक्वेस्ट भेज रहे हो, नोइंगली रैंडमली रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो इफ पीपल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट तो ही आप आगे फर्दर मोर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिक्वेस्ट भेजी जा रहे हो और कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इट डजंट वर्क इन दैट वे। तो स्टार्टिंग में मैंने रिक्वेस्ट भेजी, काफी भेजी, तो भेजता भी था, आती भी थी, भेजता भी था, ऐसे चल रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जब एम आई ऑडिबल वैभव? Yes, sir, you are. यस यस। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे जैसे भेजता गया तो थोड़ी लोग पहचानने लगे, रिकॉग्निशन मिली, तो फिर रिक्वेस्ट काफी आने लगी। तो अब जैसे पिछले 10 दिन में 1,000 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। तो ऐसे ही ये तो अभी करंट है, तो बीच में भी आ गई। मतलब एक इंसान खाली रिक्वेस्ट भेज के इतने कनेक्शन नहीं बना सकता, ये तो श्योर है। मतलब इट वर्क्स बोथ वेज, कि आप खाली मतलब भेजो तो ऐसा नहीं है कि उससे ही आप हो जाओगे। एंड पीपल शुड लाइक योर कंटेंट और एनीथिंग, योर एक्सपीरियंस, तो ही वो आपको भेजना प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ पोस्ट डाल दिया, मेरा इंटेंशन सही था, पर कुछ मैंने कोई स्माइली लगा दी जिसका लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया। तो मतलब लोग बड़े भड़क गए। तो कहते कि यू शुड नोट, ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मतलब काफी उस पे नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने अनफॉलो कर दिया, कुछ लोगों ने, तो फिर मैंने देखा तो कि बड़ा सोच समझ के डालना पड़ता है कुछ भी, कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। मतलब मैंने कुछ ऐसा डाला था कि वो डाला तो इंटेंशन तो ठीक थी, पर उसको मिस इंटरप्रेट ऐसे कर लिया कि उससे कि आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हो, आपकी सेगमेंट, मतलब आपके इंटेंशन खराब है, आप एक सेगमेंट को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। तो फिर मैंने आगे से देखा कि मतलब बड़ा फिल्टर करके, कि सोच समझ के सिर्फ आप पॉजिटिव कंटेंट ही डालने की कोशिश करो, जिससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। मतलब ऐसा ना डालो कि आप बिचिंग करो, या आप मतलब नेगेटिव डालोगे तो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। यस यस, सो द कंक्लूजन आई थिंक वाज कि हमको पॉजिटिव पोस्ट ही करनी है, मतलब ऐसी नेगेटिव नहीं करनी है पोस्ट, हाँ, नेगेटिव जो करेंगे तो सबके लिए हेल्पफुल हो या फिर लर्निंग दे उनको कुछ ऐसा। हम्म, तो मतलब तो मेरी इसमें क्या है, मतलब जो जो मेरे को बेनिफिट लगते हैं कि अगर कोई चलाता है तो मेरे को पर्सनली क्या बेनिफिट लगे। एक तो इस पे कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े लोग, चाहे कोई रैंक होल्डर्स हैं, चाहे आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कर रहा है, चाहे कोई हार्वर्ड से है, चाहे कोई आईएएस है, आईआरएस है, या कोई भी है, कोई बाहर सीपीए कर रहा है, या कोई बाहर जॉब कर रहा है, सीएफए कर रहा है, तो वो अपने अपने जैसे फील्ड से रिलेटेड या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो पढ़ने में आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है, यू कैन थिंक ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स, आपको एक सोचने की क्षमता मिलती है। दूसरा ये है कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्स दिए हुए हैं तो रिजल्ट आना बाकी है। तो काफी लोग जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो आपको रीच करते हैं कि
जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, या तो इसमें आपको हेल्प मिलती है, आपको पीछे नहीं भागना पड़ता, लोग आपको रिकॉग्नाइज करके तो आपको इसमें भी फायदा मिलता है। दूसरा, अब जैसे मेरे को रिकॉग्निशन मिल गई तो उसके बाद जैसे कि कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज होता था कि क्या करें, मतलब चलाएं ना चलाएं। तो एक बार मेरे को एक आईसीआई के पास प्रेसिडेंट है, उनकी रिक्वेस्ट आई, तो Okay, great, मेरे को लगा, great. हाँ, तो मेरे को लगा अच्छा, मतलब ये मेरी आईडी देख रहे हैं तभी आई होगी, कि हर एक को तो नहीं भेजते होंगे। तो फिर उसके बाद फिर शुरू हुआ, कोई पार्टनर है, कोई सीएफओ है, कोई डायरेक्टर है बड़ी कंपनीज में, कोई मैनेजर है। अब अभी पीछे थोड़े टाइम पहले 2-3 सीएज हैं, वो एक यूके में काम कर रहा है, लंदन में, इंग्लैंड में, यूएसए में। तो उनसे कनेक्ट होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती है, तो मोटिवेशन बूस्ट होता है थोड़ा, कि क्योंकि ऐसा है कि अगर लिंक्डइन को आप छोड़ दो, आप अपनी लाइफ से लिंक्डइन निकाल दो, एक भी ऐसा तरीका बताओ जिससे कि अगर मेरे को यूएसए में कोई सीपीए कर रहा है, मेरे को उससे बात करनी है, तो मेरे को नहीं लगता कोई मीडियम है मेरे पास। वो अब एक कोई आया है, मैं अहमदाबाद में है, बच्चा एमबीए कर रहा है, तो मेरे को उससे बात करनी है कि क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस है। तो अब मैं तो नहीं जानता किसी को, तो आप सिंस आप यहाँ से उससे कनेक्ट करके उससे फोन पे बात कर सकते हो, उससे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। तो ये मेरे को सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन लगा कि आपको एक्चुअल में नेटवर्किंग मिल रही है, Yes. मतलब आपका एक्चुअल में आपको हेल्प मिल रही है, और हेल्प आप कर भी सकते हो एक टाइम के बाद। जैसे अब आर्टिकलशिप के लिए बच्चे रिज्यूम भेजते हैं या जॉब के लिए भेजते हैं, तो मैं उनको एचआर की आईडी दे देता हूँ, या अगर किसी का सीवी अच्छा लगता है तो रेफर भी कर देता हूँ। Yes, yes. Thank you for watching the video. See you in the next video. Till then, subscribe the channel, like the video, and comment if any question you had. So comment in the comment section. Don't forget to follow me on LinkedIn. Thank you.